prove that tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square is equal to 3 tan inverse x. Condition given 0 less than x less than 1 by root 3. So here 3 tan inverse x we want to prove, taking obviously tan inverse x equal to theta. Tan inverse, the condition is upper interval minus pi by 2 plus pi by 2. So we get x equal to tan theta. Now taking LHS. LHS is tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Now we are taking x equal to, it is tan theta. So we get 3 tan theta minus tan cube theta अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. अब ये तो फॉर्मूला हो गया 11th का. tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया कि tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो वी कैन राइट tan 3 थीटा. 3 थीटा आप क्या चेक करेंगे, 3 थीटा लाइज इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स. tan इनवर्स का रेंज क्या था, अपर इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2. नाउ कंडीशन गिवन 0 less than x less than 1 by root 3, but x is equal to obviously tan theta. 1 by root 3 it is tan pi by 6. 0 it is tan 0. Now we know that tan is always increasing function, so 0 less than theta less than pi by 6, but we want to 3 theta multiply by 3. 0 less than 3 theta less than 3 pi by 6. 3 pi by 6 means pi by 2. So 3 theta belongs to open interval 0 to pi by 2 and it is a subset of minus pi by 2 plus pi by 2. This condition satisfied. So we get 3 theta. But theta is actually tan inverse x. ये तो आपको प्रूव करना था. That is RHS. Now question number 2. Cos bracket sin inverse 2 by 5 plus cos inverse x equal to 0. Then find the value of x. Actually ये MCQ है, मोस्टली MCQ में ज़्यादा आता है इस टाइप के सम. तो ये cos sin inverse 2 by 5 cos inverse x equal to 0. Therefore sin inverse 2 by 5 cos inverse x. cos इधर आएगा तो क्या होगा, obviously cos inverse होगा, क्योंकि साइन इनवर्स 2 by 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, चलो कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, पाई बाई 2 पे. तो वी गेट साइन इनवर्स 2 by 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इट इज पाई बाई 2, बिकॉज पाई बाई 2 बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स, दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई. सेटिस्फाइड हो गया. देयरफॉर sin inverse 2 by 5 equal to pi by 2 minus cos inverse x. So sin inverse 2 by 5. Now we know that if we cos inverse plus sin inverse x, it is pi by 2. So pi by 2 minus cos inverse x equal to, you can write sin inverse x, that is sin inverse x, because sin inverse x equal to pi by 2 minus cos inverse x. So pi by 2 minus cos inverse given, we can write sin inverse, but sin inverse is one function. So 2 upon 5 equal to x. So x is equal to actually 2 upon 5. Okay. Now find the value of tan 1 by 2 cos inverse 2 upon root 5. Here cos inverse given. So we taking cos inverse 2 upon root 5 equal to theta. Cos inverse given, the closed interval 0 to pi condition. Therefore cos theta equal to, we get 2 upon root 5, right? Now ये tan, ये theta हो गया, तो tan theta by 2. We know that formula of tan square theta by 2. कि tan square theta by 2 equal to, you can write 1 minus cos theta 1 plus cos theta, right? 1 minus cos theta 1 plus cos theta. So here cos theta value given
1 minus 2 upon root 5, 1 plus 2 upon root 5. That is root 5 minus 2, root 5 plus 2. Therefore, tan theta by 2 equal to, actually plus minus, root 5 minus 2, root 5 plus 2. Here theta belongs to closed interval 0 to pi, but here theta by 2 given, divided by 2, closed interval 0 to pi by 2. Therefore, tan theta is positive, so we can write positive value. Therefore, tan 1 by 2, theta is cos inverse 2 upon root 5. Root 5 minus 2, root 5 plus 2. Now taking conjugate. Root 5 minus 2, root 5 minus 2. It is root 5 minus 2 whole square. Root 5 का square कितना होगा 5, 2 का square कितना होगा 4, 5 minus 4 that is 1. The answer is root 5 minus 2. Therefore, tan 1 by 2 cos inverse 2 upon root 5 equal to 4. Tan square 1 by 2 sin inverse 2 by 3. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको. गिवन है sin inverse 2 by 3. First we taking sin inverse 2 by 3 equal to theta. Sin inverse given, कंडीशन क्या होगा उसका, minus pi by 2 plus pi by 2. Therefore, sin theta equal to 2 by 3. Now, we want to find tan square 1 by 2 sin inverse 2 by 3. ये theta 1 by 2, that is theta by 2. But we know that tan square theta by 2, it is 1 minus cos theta 1 plus cos theta. But here sin theta given, cos theta is not given. So first we want to find cos theta. We know that cos square theta equal to 1 minus sin square theta. Sin theta is 2 by 3, that is 4 by 9. 9 minus 4, that is 5. 5 by 9. Condition given. Theta belongs to closed interval minus pi by 2 plus pi by 2. First and fourth quadrant. Cos theta is positive. So cos theta is root 5 by 3. Now substitute the value. 1 minus root 5 upon 3. 1 plus root 5 upon 3. Now taking LCM. 3 minus root 5. 3 plus root 5. Now we taking conjugate. Conjugate लेंगे तो क्या बनेगा 3 minus root 5. 3 minus root 5. सेम हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया. 3 minus root 5 whole square upon 9 minus 5. एक्सपांड करो तो 9 minus 6 root 5 plus 5. 9 minus 5, that is 4. 9 plus 5, 14 minus 6 root 5 upon 4. 2 common and cancel. 7 minus 3 root 5 upon 2. It is answer. Find the value of cot pi by 4 minus 2 cot inverse 3 given है. Pi by 4. Tan inverse 1. X positive. We know that cot inverse x equal to tan inverse 1 by x when x positive. So cot inverse 3 equal to, you can write tan inverse 1 by 3. Cot tan inverse 1. 2 tan inverse 1 by 3. So tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 3. Cot tan inverse 1. ये हो गया x, ये हो गया y.
xy 1/3 into 1/3 that is 1/9. 1/9 is less than 1. So formula हो गया tan inverse x plus y 1 minus xy cot tan inverse 1 minus tan inverse. Now taking LCM. 9 minus 1. 9 minus 1 8/9. 2/3. So cot tan inverse 1 minus tan inverse. 3 3s are 9. 6/8. So cot tan inverse 1 minus tan inverse 6/8 that is 3/4. ये तो फॉर्मूला हो गया tan inverse x minus tan inverse y. Tan inverse x minus tan inverse y. You can write tan inverse x minus y 1 plus xy. So tan inverse 1 minus xy 1 plus xy. Cot tan inverse 4 minus 3 1/4. 4 plus 3 7/4. 4 4 तो कैंसिल हो गया. Cot tan inverse 1/7. चलो x पॉजिटिव. So tan inverse x equal to you can write cot inverse 1/x. 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7 होगा. 7 बिलोंग्स टू रेंज. कॉट का रेंज कितना है r. Answer is 7. Question number 6. Find the value of sin bracket 2 tan inverse 1/3 plus cos of tan inverse 2√2. अब ये 2 tan inverse x हो गया. इसको कन्वर्ट करेंगे. साइन फंक्शन गिवन है तो अंदर ब्रैकेट में क्या चाहिए साइन इनवर्स चाहिए. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 2 tan inverse x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कंडीशन -1 to 1. x कितना हो गया 1/3. तो 1/3 ऑलवेज बिलोंग्स टू -1 to 1. कंडीशन सेटिस्फाइड. तो पुटिंग x इक्वल टू 1/3. तो यू गेट 2 tan inverse 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 2 into 1/3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर दैट इज 1/9 हो गया. ये हमारा आ गया. ओके नाउ हियर cos into ब्रैकेट tan inverse 2√2. अब cos है तो अंदर कंपलसरी cos इनवर्स ही है. तो tan इनवर्स को हम क्या करेंगे cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. अब ये देखो tan इनवर्स 2√2 है. ट्रायंगल बना दो. tan है तो ऑपोजिट एडजेसेंट 2√2/1. ये फाइंड करना है. पाइथागोरस यूज करो. इसका स्क्वायर कितना होगा 4 2 8. 8 प्लस इसका स्क्वायर करो तो 1. 8 प्लस 1 कितना होगा 9. रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3. नाउ वी वांट टू cos इनवर्स. cos इनवर्स यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज 1/3. तो cos इनवर्स 1/3 हो गया. ओके इसको लेंगे तो 2/3 और 9 प्लस 1 10/9 हो जाएगा हमारा. 2/3 10/9. 3 3 9 हो गया. 3 ऊपर चला जाएगा. 6/10. 6/10 यानी 3/5 हो जाएगा. साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5. ये तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/3 है. अब ये 1/3 इसके रेंज में होना चाहिए. कॉस का रेंज कितना है क्लोज इंटरवल -1 to 1. 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने बराबर. तो 1/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1. तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होगा x होगा यानी 1/3. तो सेम टू सेम साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5. नाउ 3/5 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन. इज इट ट्रू. देन यू गेट 3/5 और ये हो गया आपका 1/3. एलसीएम लेंगे तो 3 3 9 और ये 5. 9 प्लस 5 अपॉन 5 into 3 दैट इज 15. द आंसर इज 14/15. डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 1. इसका डोमेन फाइंड करना है आपको बराबर है. तो पहले क्या करेंगे लेट cos इनवर्स 2x - 1 इक्वल टू थीटा. तो cos थीटा इक्वल टू 2x - 1. But we know that cos theta is always between -1 to 1. And putting cos theta 2x - 1. By 1. We want to find x. Here -1 given. We want to remove -1. So adding 1 on both the sides.
एडिंग 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2x, 1 plus 1 2. Now we want to x, so divide by 2. So we get x belongs to closed interval 0 to 1. Therefore, domain of cos inverse 2x minus 1 is closed interval 0 to 1. Question number 8. Domain of sin inverse under root x minus 1, ये आपको फाइंड करना है. तो पहले तो sin inverse root x minus 1 equal to theta. तो root x minus 1 equal to sin theta. Therefore, sin square theta equal to x minus 1. We know that sin square theta यानी 0 to 1, sin square cos square दोनों में 0 to 1 होता है, right? तो sin square equal to x minus 1 by 1. But we want to x, adding 1 on both the sides. So x belongs to closed interval 1 2. Therefore, domain of sin inverse under root x minus 1, it is closed interval 1, closed interval 2. Find the minimum value of n belongs to n. N is natural number, right? Where condition given tan inverse n upon pi is greater than pi by 4. इसका वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n. So n upon pi greater than tan pi by 4. So n upon pi, tan pi by 4 is 1. N is greater than pi, but pi equal to, we know that 3.14. But n belongs to n. The near value n belongs to n greater than 3.14, yani more than 3. And near value n belongs to n, it is 4. The n equal to 4 is required minimum value. Cos tan inverse x plus cot inverse root 3 equal to 0, then find the value of x. First we can write tan inverse x cot inverse root 3 equal to क्या होगा, cos inverse 0. So tan inverse x plus cot inverse root 3, it is cos inverse 0 यानी cos pi by 2. So tan inverse x plus cot inverse root 3 equal to pi by 2. Why? Because pi by 2 belongs to cos inverse, यानी कंडीशन क्या होगा, रेंज इसका 0 to pi. It is possible. So tan inverse x equal to pi by 2 minus cot inverse root 3. But we know that tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. So pi by 2 minus cot inverse x, it is tan inverse x. It is tan inverse root 3. Therefore, tan inverse the 1 function. So we get x equal to root 3. 2 tan inverse cos theta equal to tan inverse 2 cosec theta, it is given. And we want to find theta and prove that theta is pi by 4. N is any integer. Now we know that formula 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Using this formula 2 tan inverse x equal to cos theta हो गया, tan inverse 2x 2 cos theta 1 minus cos square theta is equal to tan inverse 2 cosec theta. So we get 2 cos theta 1 minus cos square, it is sin square theta.
tan inverse 2 cosec theta. So tan inverse 2 cos theta 1 upon sin square, it is cosec square theta, equal to tan inverse 2 cosec theta. But tan inverse is one function. 2 cos theta cos square theta equal to 2 cosec theta. 2 तो कैंसिल हो गया, 1 cosec also cancel, तो we get cos into cosec theta equal to 1. Cosec यानी sin theta, 1 upon sin theta. Therefore cot theta is 1. Obviously cot theta is 1, the theta is always pi by 4. So that cos of 2 tan inverse 1 by 7 is equal to sin of 4 tan inverse 1 by 3. ये आपको फॉर्मूला पता है. cos है तो इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये sin है sin इनवर्स में कन्वर्ट करो. इसका फॉर्मूला हमें पता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. Therefore first we taking LHS, cos 2 tan inverse 1 by 7 using this formula. Cos inverse 1 minus x square, तो 1 minus 1 by 49, 1 plus 1 by 49, cos inverse 49 minus 1 48 upon 49 cancel, 49 plus 1 that is 50. The answer is 48 by 50. Now 48 by 50 यानी 24 by 25, ये हमारा हो गया LHS. Now we take RHS, sin 4 tan inverse 1 by 3, 4 को स्पीड कर दो, 2 into 2 tan inverse 1 by 3, 2 tan inverse x. Now using this formula, 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. So tan inverse 2x 1 minus x square, 2 tan inverse 2 by 3, 9 minus 1 8 by 9, 3 कैंसिल हो गया, sin 2 tan inverse 3 ऊपर आएगा 6 by 8 हो गया, sin 2 tan inverse 6 by 8 that is 3 by 4. But we know that 2 tan inverse x equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. But x equal to 3 by 4. So 2 into 3 by 4, 1 plus 9 by 16. So 3 that is 3, 2 into 3 by 4 that is 3 by 2, 16 plus 9, 25 by 16, 2 8 just 16, 8 3 just 24, 24 by 25. And we know that 24 upon 25 belongs to range of sign. So range of sign is closed interval minus 1 to 1, right? It is minus 1 to 1. So answer is 24 by 25. The LHS equal to RHS. Now solve the equation cos of tan inverse x equal to sin cot inverse 3 by 4. पहले क्या करेंगे, cos tan inverse को cos inverse में कन्वर्ट करो, tan inverse x यानी x by 1 हो गया, पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये x स्क्वायर इसका 1 होगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1, रूट क्या मिलेगा, रूट x स्क्वायर प्लस 1, cot इनवर्स 3 by 4 यानी cot यानी 3 into 4, ये 4 और 3 हो गया तो ट्रिपलेट हो गया 5. चलो इसको कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में, राइट. tan इनवर्स गिवन है और वी वांट टू कन्वर्ट इन cos इनवर्स, तो cos इनवर्स क्या मिलेगा, cos इनवर्स x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये sin इनवर्स हो गया, cos इनवर्स मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, और इधर sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो sin इनवर्स क्या मिलेगा हमें 4 अपॉन 5 मिलेगा, बराबर. ये तो रेंज में है, ये भी रेंज में है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है. ओके, तो इसका क्या मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या मिलेगा 4 by 5. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, सो वी गेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 16 by 25.
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 25 इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 कितना होगा 9, 9/16 हो गया ये। बट कंडीशन तो क्या था 0 to 1 है, पॉजिटिव वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 3/। नाउ वी टेकिंग 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 कि राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड कंडीशन इज गिवन एक्स इज ग्रेटर देन 1। यार एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इधर tan इनवर्स गिवन है, तो हमें आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर होगा, तो सेक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर, तो वी टेकिंग x इक्वल टू sec थीटा बिकॉज सेक्स स्क्वायर माइनस 1 इट इज वी गेट tan थीटा, तो वी एज्यूम x इक्वल टू sec थीटा। व्हेन वी टेकिंग x इक्वल टू sec थीटा, तो थीटा इज sec इनवर्स x, व्हेन थीटा इज sec इनवर्स x, तो कंडीशन याद होना चाहिए, रेंज ऑफ sec इनवर्स क्या था, क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस π/2, ठीक है, ये तो आपका हो गया एज्यूम। ओके नाउ बट यार कंडीशन इज गिवन x इज ग्रेटर देन 1 है, यानी x क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब ये तो 0 to पाई, ये आपका यूनिट सर्कल, ये 0 ये पाई एंड π/2 नॉट पॉसिबल, यानी फर्स्ट में भी हो सकता है सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। ओके बट x का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, x पॉजिटिव तो sec थीटा ऑल्सो पॉजिटिव, तो sec थीटा पॉजिटिव, तो बट सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या है नेगेटिव है, तो ये इंटरवल कैंसिल हो गया, तो इंटरवल क्या बनेगा 0 to π/2 बनेगा, दैट मीन्स sec थीटा इज ग्रेटर देन 1, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू अपर इंटरवल 0 to π/2 because we want to positive value, sec theta is greater than 1 है। okay now tan inverse 1 upon under root x square minus 1 is given, but x equal to sec theta, तो tan inverse 1 upon under root sec square minus 1, but root sec square minus 1 that is tan square, root tan square that is mod of tan theta, right, mod of tan theta हो गया हमारे पास। ओके अब चेक करना पड़ेगा इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट थीटा क्या है upper interval 0 to π/2 that is first quadrant, in first quadrant tan theta is positive, so mod of tan theta equal to, you can write tan theta, so tan inverse 1 upon tan theta because theta belongs to 0 to π/2, tan theta greater than 0। now 1 upon tan theta it is cot theta, cot को क्या करेंगे tan में कन्वर्ट करो, tan π/2 माइनस थीटा। अब ये रेंज चेक करना पड़ेगा, एंगल π/2 माइनस थीटा लाइज ऑन द tan इनवर्स। now थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, वी वांट टू π/2 माइनस थीटा, तो क्या करेंगे थीटा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इनइक्वालिटी विल बी चेंज, तो ये आगे आ जाएगा वो पीछे चला जाएगा, तो माइनस थीटा बिलोंग्स टू अपर इंटरवल माइनस π/2 to 0। अब ऐड क्या करना है π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस π/2 तो 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, यानी π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। tan इनवर्स का कंडीशन क्या था रेंज ओपन इंटरवल माइनस π/2 प्लस π/2, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो फर्स्ट आ गया कंडीशन सेटिस्फाइड, तो आंसर इज π/2 माइनस थीटा, बट हियर x इक्वल टू sec थीटा एंड थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x, नाउ यू कैन राइट π/2 माइनस थीटा, तो थीटा इज sec इनवर्स x हो गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, but we know that 1 minus cos x 1 plus cos x is the formula of tan square x by 2, right, you can write this equal to tan inverse under root tan square x by 2, so root tan square x by 2 यानी mod of tan x by 2। now check the condition, ये 0 to pi है, डिवाइड बाय 2 करो तो 0 to π/2, 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x by 2 क्या होगा पॉजिटिव बनेगा, राइट, ये tan x by 2 पॉजिटिव, मोड का क्या हो जाएगा tan x by 2। now we want to check x by 2 belongs to range of tan inverse, now range of tan inverse क्या है अपर इंटरवल माइनस π/2 to प्लस π/2, ये तो हो गया हमारा 0 to π/2। now we know that 0 to π/2 is a subset of minus π/2 to plus π/2, that is condition satisfied, so you get tan inverse tan x by 2 equal to directly answer x by 2, condition satisfied। राइट दिस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x, कंडीशन माइनस π/4 लेस देन x लेस देन 3 π/4। अब ये tan इनवर्स हो गया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या आना चाहिए tan की फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद रखना, पहले tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा होगा, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा
इधर भी प्लस आएगा, इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, अल्फा माइनस बीटा का। अब यहाँ पे हमें कंपलसरी 1 चाहिए, ये cos x गिवन है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, cos x कर दो। चलो डिवाइड बाय cos x कर दिया तो क्या मिलेगा, cos अपॉन cos कैंसिल यानी 1, साइन अपॉन cos tan x, cos अपॉन cos 1, साइन अपॉन cos tan x, तो आ गया 10, बट पुटिंग 1 इक्वल टू 10 पाई बाय 4, तो ये हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10x। ये फॉर्मूला बनेगी अल्फा माइनस बीटा, इसके ऊपर से क्या बनेगा, 10 पाई बाय 4 माइनस x। ना यार कंडीशन इज गिवन, क्या कंडीशन है कि पाई बाय 4 लेस देन माइनस पाई बाय 4 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाय 4, वी वांट टू माइनस x, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये पॉजिटिव साइन चेंज ग्रेटर देन माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 3 पाई बाय 4, कितना ऐड करना है, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4। नाउ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2, ये तो वही रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, पाई माइनस 3 पाई, पाई माइनस 3 पाई यानी माइनस 2 पाई अपॉन 4 दैट इज माइनस पाई बाय 2, तो वी गेट माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। नाउ रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या है, अपर इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, सेटिस्फाइड हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बिना पाई बाय 4 माइनस एक्स हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कंडीशन इज गिवन मॉड x लेस देन a एंड a इज पॉजिटिव, या रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गिवन, वी नो दैट 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर, राइट, ये tan इनवर्स गिवन है, ऊपर क्या चाहिए साइन, नीचे क्या चाहिए कॉस, तो वी एज्यूम कि भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, राइट, ये आपको फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड ईयर x इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू कंडीशन क्लोज साइन का यूनिवर्स की, साइन यूनिवर्स में कंडीशन क्या था, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो x बाय ए इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x बाय ए होगा। नाउ दिस वैल्यू पुटिंग इन द गिवन कंडीशंस, tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, बट x इक्वल टू क्या सपोज किया है, a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो कॉमन हो गया, यानी क्या होगा, रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा हो गया। नाउ हियर ए पॉजिटिव, तो मॉड ए इक्वल टू तो ए हो गया, एंड कंडीशन क्या है, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस ऑल्सो पॉजिटिव, तो ए कॉस थीटा इज पॉजिटिव, ए कैंसिल हो गया, tan इनवर्स tan थीटा हो गया हमारा। नाउ वी वांट टू चेक द कंडीशन, हियर कंडीशन इज गिवन मॉड x लेस देन a एंड a इज पॉजिटिव। अब मॉड x लेस देन a, तो कंडीशन तो आपको याद होना चाहिए, माइनस ए लेस देन x लेस देन a हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, tan थीटा है, बट थीटा एक्चुअली क्या है, साइन इनवर्स x बाय a है। नाउ बट x इक्वल टू क्या सपोज किया था, a साइन थीटा डिवाइड बाय a, बिकॉज a पॉजिटिव है, या लिखो रीजन कंपलसरी a ग्रेटर देन 0, तो डिवाइड बाय a, तो -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1 हो गया, बराबर है। अब साइन थीटा हमारे पास हो गया अपने पास, तो ये किसका वैल्यू हो गया, साइन माइनस पाई बाय 2 का, ये किसका हो गया, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू हो गया, ये माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। नाउ वी नो दैट साइन इंक्रीजिंग इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें तो इंक्रीजिंग होगा, तो साइन कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। अब माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 कंडीशन हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, और थीटा का मिलना चाहिए रेंज ऑफ tan इनवर्स, रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या है, अपर इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, दैट इज कंडीशन सेटिस्फाइड, सो वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो आंसर इज थीटा हो गया, बट एक्चुअली थीटा हमारा कितना था, साइन इनवर्स x बाय a, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द tan इनवर्स 3a x स्क्वायर x 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर x, a पॉजिटिव है और कंडीशन गिवन, ठीक है। अब tan इनवर्स है, यहाँ पे कंपलसरी 1 चीज़ें आगे देखा हमने, वी वांट टू 1, सो डिवाइडिंग बाय a क्यूब, चलो डिवाइडिंग बाय a क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3a स्क्वायर x अपॉन a क्यूब, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3x बाय a,
एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये तो कैंसिल यानी 1, ए कैंसिल होगा तो 3a एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया। एक्स बाय एक्स बाय एक्स बाय, ये फॉर्मूला बन गया tan थीटा का। तो वी एज्यूम कि x बाय ए इक्वल टू tan थीटा, पहले सपोज करते हैं कि x बाय ए इज इक्वल टू tan थीटा। x बाय ए को tan थीटा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाय ए। सो थीटा बिलोंग्स टू अपर इंटरवल माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, बिकॉज tan इनवर्स है। ओके, तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan थीटा का फॉर्मूला। अब कंडीशन चेक करो कि दिस 3 थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ tan इनवर्स। नाउ योर कंडीशन इज गिवन, क्या कंडीशन है, माइनस ए बाय रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन ए बाय रूट 3, ठीक है। बट x इक्वल टू क्या है हमारा, x बाय ए इक्वल टू tan थीटा है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए कर दो। चलो डिवाइडिंग बाय ए किया दो, माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन एक्स बाय ए लेस देन 1 बाय रूट 3, बट x बाय इक्वल टू क्या है, एक्चुअली tan थीटा, तो ये हो गया हमारा tan थीटा। 1 बाय रूट 3 यानी 10 पाई बाय 6 माइनस यानी 10 माइनस पाई बाय 6, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बट tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी tan इंक्रीजिंग इन ऑल द क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट और फोर्थ में tan इंक्रीजिंग होगा। व्हेन इंक्रीजिंग फंक्शन साइन नॉट चेंज, तो यू कैन राइट माइनस पाई बाय 6 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 6 हो गया। बट वी वांट टू 3 थीटा, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो माइनस 3 पाई बाय 6 यानी माइनस पाई बाय 2, ये 3 थीटा, तो 3 पाई बाय 6 यानी पाई बाय 2, तो वी गेट माइनस पाई बाय 2 लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई बाय 2। नाउ रेंज ऑफ tan इनवर्स, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो आंसर इज 3 थीटा। बट एक्चुअली थीटा कितना था हमारा, थीटा देखो tan इनवर्स x बाय ए, तो वी गेट 3 tan इनवर्स x बाय ए। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4, ये गिवन है, एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट वी टेकिंग tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, बराबर है। तो फॉर्मूला हमें पता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो नाउ वी टेकिंग एलसीएम, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा हमारा, बराबर। ब्रैकेट ओपन करो, इसका ब्रैकेट ओपन करो, इसका ब्रैकेट ओपन करो, इसका ब्रैकेट ओपन करो, टोटल सिंप्लीफाई कर दो आप, आपको क्या मिलेगा, इतना मिलेगा, tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, ठीक है। अब ये जो पाई बाय 4 है, देखो tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू पाई बाय 4, tan यहाँ पे आएगा तो tan पाई बाय 4 हो जाएगा, tan पाई बाय 4 इज 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, अब माइनस 3 प्लस 4 कितना होगा 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। अभी आंसर नहीं है एक्चुअली, ये आपको वैल्यू मिली। अब ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी आपको, गिवन जो इक्वेशन है ना उसके LHS में सब्स्टिट्यूट करो 1 बाय 1। फर्स्ट वी टेकिंग एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट 2 एंड प्रूव दैट पाई बाय 4। सेकंड वी टेकिंग एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 एंड वी वांट टू प्रूव दैट पाई बाय 4। नाउ फर्स्ट वी टेकिंग वेरिफिकेशन एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट 2, नाउ टेकिंग LHS, चलो LHS में डाल दो आप, 1 बाय रूट 2 माइनस 1, 1 बाय रूट 2 माइनस 2, tan इनवर्स 1 बाय रूट 2 प्लस 1, 1 बाय रूट 2 प्लस 2। नाउ टेकिंग LCM, तो 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस 2 रूट 2, 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस 2 रूट 2, राइट, ये मिल जाएगा हमें। अब ये देखो ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, एक्स वाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइड में कर सकते हो आप रूप में, तो एक्स वाई लेस देन 1 मिलेगा हमें। तो क्या फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स, दोनों का एडिशन होगा ना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। नाउ 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस 2 रूट 2, तो रूट 2 इज 1.41, तो नेगेटिव हो गया। तो आप क्या करेंगे, ऊपर से नेगेटिव कॉमन, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन, दोनों कैंसिल हो गया, तो रूट 2 माइनस 1 और नीचे क्या मिलेगा 2 रूट 2 माइनस 1, ये तो वही है, रूट 2 प्लस 1, 2 रूट 2 प्लस 1, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया हमारा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वैल्यू पुटअप कर दो, सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारा, वो आप प्रूव कर सकते हो। तो क्या मिला, tan इनवर्स 1, बट 1 इक्वल टू क्या है, tan पाई बाय 4, एंड पाई बाय 4 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ tan इनवर्स, तो वी गेट द पाई बाय 4 आंसर, दैट RHS हो गया, यानी x इक्वल टू 1 बाय रूट 2 इज पॉसिबल। नाउ वी टेकिंग x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2, वो भी वापस पुटअप कर सकते हो वैल्यू, दोनों वैल्यू पुटअप कर दो उसमें वापस से, फिर वापस से एलसीएम ले लो, नेगेटिव कॉमन, नेगेटिव कॉमन,
इसमें √2 - 1 to √2 - 1 हो गया। ये तो वापस आगे वाले सम आ गया वापस। बाय केस 1 वी गेट डायरेक्टली π/4 8 पर केस 1 ना, सीधा आंसर लिख सकते हो आप, यानी RHS हो गया। यानी कि x = -1/√2 इज ऑल्सो वैलिड। दैट मीन्स वी हैव टू वैल्यूज 1/√2 और -1/√2 बोथ आर वैलिड। कई सम में क्या होगा, दो आंसर आएंगे तो एक पॉसिबल होगा और एक नॉट पॉसिबल होगा। ये यानी वेरिफिकेशन इज कंपल्सरी। ओके।